Series, Governing Body Member of RAB, Director RAB Dr. Vandana Siroha Ma'am, Gurujans, I welcome you all in another intellectual session of Gyan Ganga webinar series. Today's guest speaker is Professor Dr. Manoranjan Sahu, former Dean, Faculty of Ayurveda, Banaras Hindu University, who has joined us today in the 257th episode of this knowledge voyage. I, Dr. Saraswati, on behalf of REB, welcome you all for today's session. On the onset, we would also like to express our heartfelt gratitude and welcome our mentors who have always been there to guide, motivate, and encourage us for sustenance of this series. Respected Vaidya Shri Devendra Gunaji, President GBRAB, respected Vaidya Shri Rajesh Kotecha Sir, Secretary, Ministry of Ayush, respected Dr. Vandana Siroha Ma'am, Director, RAB. Let us begin the session by seeking the blessings of Lord Dhanvantri. Om Dhanvantraya Namaha. Now, I would like to introduce today's expert, Professor Dr. Manoranjan Sahu Sir, who is going to throw light on the topic hemorrhoids and their management in Ayurveda. Professor Dr. Manoranjan Sahu Sir is a well-known name in the field of Shalya Tantra. Dr. Sahu pursued his graduation from J.B. Roy Street Ayurveda College, Calcutta, and completed MD, PhD from BHU in 1982 and 1986 respectively. He began his career as a lecturer at Institute of Medicine, Kathmandu, Nepal, and State Ayurvedic College, Varanasi, before joining the Department of Shalya Tantra in Banaras Hindu University. Owing to his academic and administrative excellence, Professor Manoranjan Sahu was also appointed as founder director of All India Institute of Ayurveda, New Delhi in 2010 by the Department of Ayush, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. A scholar of international repute, he has also served as Indian coordinator for the India-China collaboration in traditional medicine in the year 2015. In recognition of his exceptional contribution to Ayurveda and Shalya Tantra, Professor Manoranjan Sahu has received several prestigious national awards. His outstanding services to the field was further recognized with the Padma Shri conferred by the President of India in 2023. Now, I would like to request and invite Sir to proceed with the lecture. Over to you, Sir. Okay. नमस्कार, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Okay. साहू जी सुनाई दे रही है? नमस्कार साहू जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। ओ प्रणाम प्रणाम त्रिपाठी जी, प्रणाम। बड़े दिनों के बाद मैं सबसे पहले तो आज 257 एपिसोड आज ज्ञान गंगा की है। इस एपिसोड में आरएबी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि एक बार आप सबसे मिलने का और बात करने के अवसर मिला है। सबसे पहले जो डायरेक्टर मैडम है आरएबी के और आरएबी के समस्त जो लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ज्ञान गंगा की इस एपिसोड्स को बनाए रखे हैं बहुत लंबे समय से, कोविड के पीरियड से। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आगे बहुत समय ना लेते हुए मैं अपने विषय पर आना चाहूँगा। पहले तो सभी गुरुजनों को प्रणाम और सभी शिष्यों को जो है मेरी शुभकामनाएं। 257 एपिसोड में आज हम बात करेंगे हेमोरॉइड्स, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है आयुर्वेद के। ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर के मरीजें बहुत आते रहते हैं, और क्योंकि मरीज आता है इसलिए हमारी जो है जिम्मेदारी बनती है कि हम बीमारियों को सही से पहचानें और सही तरीके से उसके हम इलाज करें। ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। तो पिछले काफ़ी लंबे समय से हमने इन बीमारियों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके इलाज से, और ढेर सारे हम लोगों ने शोध कार्य इसके ऊपर किए हैं। तो मैं जो बिगिनर्स हैं, खासतौर से जो आरएबी के हमारे शिष्य हैं, उन सब के लिए मैं आपके अपना प्रस्तुति जो रखूंगा, उसमें से पहले जो पोर्शन है हमारी पे जो प्रेजेंटेशन है, उसमें मेरा जो रहेगा कि ये बीमारी है क्या चीज़,
हम क्या जानते हैं इसके बारे में, हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है, इसके बारे में हम पहले थोड़ा प्रकाश डालेंगे। दूसरी बात कि आयुर्वेद में हम इस बीमारी को कैसे देखते हैं, किस रूप से देखते हैं और कैसे इलाज करते हैं। इस बीमारी को इलाज करने के समय और क्या-क्या चीज़ उसकी सादृश्यता के साथ हमारे सामने आता है, जिससे हमें कई बार बीमारी को पहचानने में भी दिक्कत होती हैं, या जो हम कहते हैं कि और कौन-सी जो बीमारियाँ हैं जो कुछ तरीके से ऐसा ही देखने में लगता है, लेकिन होता कुछ दूसरा ही है। तो हम इस पूरे चीज़ों को आज हम चर्चा करेंगे। चलिए बहुत संक्षेप में, लेकिन एक कोशिश करेंगे एक सामान्य तरीके से इस बात को हम सबके सामने रखने के लिए, और कुछ लंबे समय तक इस बीमारी को इलाज करने के जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं पहले स्लाइड्स पर, हेमोरॉइड्स। देखिए बेसिकली जो हमारा टाइटल है, उसकी जो बेसिक जो 2 शब्द है, हीमा और दूसरा जो है रोस। तो ये 2 शब्द जो है, हेमा शब्द से हम सभी लोग जानते हैं कि ब्लड के मतलब जो है हीमा होती है। रोस शब्द से फ्लोइंग है। मतलब अगर एक सीधी बात अगर हम कहें कि एक ऐसे बीमारी है जहाँ जो ब्लड कहीं न कहीं से फ्लो होता है और ब्लड लॉस होती है इसमें से। और जो कॉमनली अगर हम ये बेसिकली एक ग्रीक शब्द है, जिसको हम ब्लड फ्लोइंग के रूप में समझते हैं या ब्लड लॉस की तरह हम इसको देखते रहते हैं। पाइल्स एक दूसरा शब्द है जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है। एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कि एक मास या एक बॉल है। तो ये तो बेसिकली हम जो देखते हैं कि जो एनल कैनाल के आसपास में जो ब्लीडिंग या जो स्वेलिंग्स दिखते हैं, उसको हम लोग कई बार उसको हीमोरॉइड्स करके बोलते रहते हैं। तो जब अगर हम और थोड़ा डिटेल इसके बारे में जाते हैं, तो क्या बेसिकली ये चीज़ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और प्रीसियसली मतलब मोर एक्यूरेटली हम इसको क्या कहते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर आप देखें जो हेमोरॉइड्स होते हैं, देखिए दे आर ब्लूइश कलर के थोड़ी-सी होते हैं, प्रोट्रूड करता है एनल कैनाल में कई बार। और बेसिकली जो हेमोरॉइड्स होते हैं, ये एनगॉर्ज्ड वेन्स होते हैं। हेमोरॉइडल वेन्स हैं, वो टॉर्चुअस हो जाती है, डायलेटेड हो जाती है। टॉर्चुअस कहने का मतलब है कि वो टेढ़ा-मेढ़ा हो जाते हैं, डाइल्यूटेड मतलब कि ये डायलेटेड हो जाते हैं, मतलब ये मोटा हो जाते हैं, जो अपने जो नॉर्मल कैलिबर से ज़्यादा हो जाते हैं, और वो टॉर्चुअस हो जाता है, टेढ़ा-मेढ़ा एक नेटवर्क की तरह बन जाते हैं, और वो बाहर धीरे-धीरे प्रोट्रूड करने लगता है और उससे ब्लीडिंग होने लगती है। बेसिकली एक प्रॉब्लम है जो हम इसको हेमोरॉइड्स बोलते हैं। द एब्नॉर्मल डायलेटेशन एंड टॉर्चुओसिटी ऑफ और एनगॉर्ज्ड हेमोरॉइडल प्लेक्सस, हम इसको हेमोरॉइड बोलते हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन है। तो कब से इस बीमारी के बारे में हम जानते हैं? एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर हम देखते हैं, तो काफ़ी लंबे समय से इस बीमारी के बारे में जानकारी है। जो एविडेंसेस अवेलेबल है, वो काफ़ी पहले से ही है। देखिए करीब 2000 2250 ईसा पूर्व से जो है, ये जो बेबीलोन की जो सभ्यता, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, उनमें इसके बारे में कुछ विवरण मिलती है। लेकिन जो इजिप्शियन जो लिटरेचर है, उसमें भी इसकी अवेलेबिलिटी मिलती है। 1552 ईसा पूर्व से भी इसकी मिलती है। तो ये तो चला गया सब जो हमारी दूसरे सभ्यताओं के बारे में है, लेकिन जो हमारे आयुर्वेद के बारे में जो मिलती हैं, उसके बारे में चरक की अगर हम बात करें, तो करीब 1000 साल पहले चरक संहिता में भी अर्श के बारे में काफ़ी विविड डिस्क्रिप्शंस हैं। लेकिन सुश्रुत संहिता जो 500 ईसा पूर्व में है, उसमें भी काफ़ी विस्तृत उसकी अर्श के बारे में जानकारी मिलती है। उसके चिकित्सा के निदान, चिकित्सा, इस सभी के बारे में अवेलेबल लिटरेचर्स अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी लंबे समय से, लंबे अरसे से जो हमारी डिफरेंट मेडिकल लिटरेचर अवेलेबल है, सभी लिटरेचर्स में
इस तरह का जो अवेलेबल्स मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन अवेलेबल मिलते हैं। तो देखिए धीरे-धीरे ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम देखें कि मैनेजमेंट ऑफ पाइल्स, ये देखिए गैलन जो है उन्होंने रिकमेंड किया है, लैक्सेटिव्स रिकमेंड किया है, ऑइंटमेंट्स हैं, लीचेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सब चीज़ें धीरे-धीरे सुश्रुत संहिता से जो है सुश्रुत के जो चिकित्सा की जो विधा है वो मॉडर्न मेडिसिन में धीरे-धीरे ग्रीक सिविलाइजेशंस में गया है और लीच एप्लीकेशंस बाद में शुरू हुई है। फिर देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइड थ्रेड्स, ये थ्रेड से उसको टाई करना, ये भी एक ट्रीटमेंट के प्रोसीड्यूर्स हैं जो लाइगेशन करते हैं हम, और धीरे-धीरे हेमोरॉइड को जो है स्लफ आउट कर देता है। इस तरह का पॉटरी है, एप्लीकेशन ऑफ पॉटरी, ये सब चीज़ें धीरे-धीरे प्रैक्टिस में आई है। तो लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मॉडर्न अप्रोचेस कहते हैं हम लोग, जो ट्रीटमेंट ऑफ जो हेमोरॉइड्स के और उसके डिस्क्रिप्शंस के बारे में आए हैं, ये लॉर्ड्स प्रोसीड्यूर्स के बारे में हम जानते हैं कि जो उन्होंने काफ़ी उसके डिस्क्रिप्शंस अवेलेबल है कि कैसे उसको ट्रीटमेंट करना है। लॉर्ड्स प्रोसीड्यूर्स में क्या करते थे कि एनल कैनाल को स्ट्रेच कर देते थे, उसको खींच देते थे, तो उससे जो है प्लेक्सस लूज हो जाते थे। लेकिन जो आज ट्रीटमेंट में आज उसकी कोई इस्तेमाल नहीं होते हैं, ऐसे प्रोसीड्यूर्स का भी शुरू हुई थी 1935 के आसपास में, लेकिन बाद में जो है वो डिस्कार्ड होती गई। सबसे बड़ी बात यह है कि रबर बैंड लाइगेशंस, जिसको हम ऑफिस प्रोसीड्यूर्स है, 1963 में इसको जो है शुरू हुई थी। तो अनदर इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसको जो आज भी ये ट्रीटमेंट मोडालिटीज हेमोरॉइड्स के आज चलती रहती है, वो जो है 1935 में मिलिगन मॉर्गन प्रोसीड्यूर, जिसमें हेमोरॉइड्स को मैंने और इसको काट करके निकाल देना, लाइगेशन हेमोरॉइडेक्टमी जिसको कहते हैं, ओपन हेमोरॉइडेक्टमी और लाइगेशन 1935, काफी 100 साल के अधिक समय से इसकी प्रोसीड्यूर्स ये चलती आ रही है। क्लोज हेमोरॉइडेक्टमी 1963 में शुरू हुआ है। एनल डायलिटेशन लॉर्ड्स ने शुरू किए थे, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव नहीं रहा है, मैंने इसके बारे में बताया। तो कुछ हिस्टोरिकल जो अवेलेबल फोटोग्राफ्स मिलते हैं, जिसको कहते हैं कि जो डायग्राम्स मिलते हैं, वो इस प्रकार है, जहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट से जो है हेमोरॉइड्स को एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से उसको काट देने का जो है, मतलब कि हेमोरॉइड्स को लाइगेट करना और उसको काट देना, ऐसा एक प्रोसीड्यूर्स के ब्रिटिश म्यूजियम में इस तरह का एक फोटोग्राफ्स अवेलेबल है। ये हमारी जो अर्ली सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स है उसको दिखता है। दूसरा एक ऐसे भी दिखता है, ये फोटोग्राफ्स अवेलेबल है जहाँ पर द सेम एक लाइट दिखा करके एक पेशेंट को जो है कैसे उसको ऑपरेट करने का जो प्रोसीड्यूर्स है वो दर्शाता है कि रेड हॉट आयरन को जो है उसमें हेमोरॉइड्स में पॉटरी कर देते हैं। तो ये सब डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स के कुछ डिपिक्शंस हैं जो पुराने टेक्स्ट में दिखते हैं। हेमोरॉइड सर्जरी के साथ या डिजीज के साथ एक बात मैं हिस्टोरी के साथ बोलना मुझे उचित लगा है कि जो नेपोलियन के नाम हम कई बार सब लोगों ने सुने हैं, जो एक फ्रेंच रूलर थे, बहुत ही काफी ताकतवर रूलर थे और काफी बड़ा साम्राज्य था नेपोलियन बोनापार्टे। तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश के साथ जो है वाटरलू के एक लड़ाई हुई थी, जो आजकल जो है यूरोप में है। तो उस जगह पर ये लड़ाई उसने इसलिए हार गए थे, पाइल्स के प्रॉब्लम्स था, तो वो घोड़े में बैठ नहीं पाए, और दूसरा उनकी दर्द कम करने के लिए उनको ओपियम के ज्यादा मात्रा में सेवन करवा दिए थे, जिसके चलते वो लड़ ही नहीं पाया, हार गए। मतलब एक ऐसा कहने का मतलब हिस्टोरिकली ये कहते हैं इसलिए कि एक ऐसा बीमारी है जिसके चलते आदमी अपने पूरे साम्राज्य को खो दिए। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस डिजीज के बारे में सही जानकारी करना और उसके सही इलाज होना। तो हम इस बात को एक पहले शुरू करने से पहले जो एक बेसिक चीजें हमें समझना बेहद जरूरी है कि हेमोरॉइड्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम इंटरनल हेमोरॉइड्स
और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, ये दो हेमोरॉइड्स के बारे में बात करते हैं। तो इंटरनल हेमोरॉइड्स एक बेसिकली ये जो हेमोरॉइडल प्लेक्सस, जो ब्लड वेसल्स एनल कैनाल के और एनोरेक्टल जंक्शंस में जो होती है, जो बेसिकली एक नेटवर्क ऑफ वेन्स है, जिससे आप डायग्राम से देख सकते हैं। एक टफ है, काफी जो है ज्यादा जो है एक नेटवर्क टाइप के हैं। इस नेटवर्क के कंजेशन के वजह से ये वेन्स जो है डायलेटेड हो जाती है और टॉर्चुअस हो जाती है। ये इंटरनल हेमोरॉइडल प्लेक्सस है। इससे जो आता है तो इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं। दूसरा जो बाहर की जो नेटवर्क है, जो एनल कैनाल के बाहरी हिस्से में रहता है, वो हम एक्सटर्नल हेमोरॉइडल प्लेक्सस बोलते हैं। इससे जब डिजीज बनती है तो उसको हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स बोलते हैं। ये जो हेमोरॉइड्स हम देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हैं, और ये जो हेमोरॉइड्स यहाँ से डेवलप हुआ है, ये इंटरनल हेमोरॉइड्स। इंटरनल हेमोरॉइड्स पेक्टिनेट लाइन के ऊपर से आता है। ये जो एनोरेक्टल के जो जंक्शन है, ये पेक्टिनेट लाइन है, ऊपर से जब आता है तो वो इंटरनल हेमोरॉइड्स है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोट्रूड होते होते बाहर आ जाता है। तो इंटरनल हेमोरॉइड ग्रेजुअली बिकम ए प्रोट्रूडेड एंड बिकम एक्सटर्नल, whereas एक्सटर्नल हेमोरॉइड बाहरी से ही शुरू होती है और बाहर हो जाती है। तो ये बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स के जो डिफरेंसेस है, ये हमें समझना जरूरी है। मेनली जो हेमोरॉइड के जो हम ये चीज सभी लोगों ने पढ़े हैं कि 3-7-11 में ये प्रोट्रूड करता है, क्योंकि जो हेमोरॉइडल जो वेसल्स होते हैं, उनकी ब्रांचेस इन 3 लोकेशन में प्रोमिनेंट होते हैं। तो इसलिए ये 11 o'clock हेमोरॉइड्स है, ये 3 o'clock पोजीशन है, लाइंग डाउन ऑन बैक, और वो देखने में कुछ हद तक ऐसे होते हैं जब डिजीज होता है। हमने जो फर्स्ट स्लाइड आपको दिखाए थे, कुछ हद तक ऐसा ही था ये। जब अगर आप देखते हैं ऑन विजन तो इस तरह से होता है। तो ये इसके बनने का जो रीजंस है, ये जो हेमोरॉइडल वेसल्स है, इस वेसल्स की प्रोट्रूजन्स की वजह से ये बीमारी बनती है। एक खास बात मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप अगर जो एनोरेक्टल एरिया की ब्लड सप्लाई को हम देखते हैं, ये बहुत एक्सटेंसिवली जो है ब्लड से, ब्लड वेसल से भरे हुए होते हैं। आप देखिए इस फोटोग्राफ से कि कितने एक्सटेंसिव नेटवर्क है, जिसको हम कैवर्नस रेक्टाई बोलते हैं। एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जैसे कि स्पॉन्ज में पोरस होती है, उसी तरह से। इसलिए जब कभी ब्लीडिंग होता है तो काफी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है, चाहे अपने आप हो या कई बार सर्जरी के समय हम लोग देखते हैं तो ये ब्लीड, इस ब्लड वेसल्स इंजुरी होने की वजह से काफी ब्लीडिंग होती रहती है। तो हमें हमेशा इस नेटवर्क के बारे में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस नेटवर्क में अबनॉर्मलिटीज होने लगती है, जिसके चलते ये ब्लड ब्लीडिंग होने लगता है। तो कई सारे थ्योरीज है। तो कंजेशन ऑफ हेमोरॉइड्स, हाइपरपिडेनल कुशन, जो सॉरी जो एनल कुशन जो है वो गड़बड़ा जाता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, प्रेगनेंसी, एसाइटिस, पेल्विक ट्यूमर। ब्लड फ्लो जो विनस रिटर्न है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके चलते ब्लड वेसल्स धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, एनगॉर्ज होने लगता है। Conditions like increased age, constipation, overpurgation, और recurrent diarrhea, colitis, prolonged standing, ये सब को भी कारण मानते हैं। तो इसलिए जो एग्जैक्ट रीजन हम जानते नहीं है, लेकिन ढेर सारे कारण है। ये सभी कारण जो है कहीं ना कहीं हेमोरॉइड्स को डेवलप होने में मदद करता है। ठीक है, वेनस रिटर्न कम हो जाना, स्ट्रेन करना, अपराइट पोजीशन होना, प्रेगनेंसी, हाइपरप्लेसिया ऑफ कॉर्पस कैवर्नस रेक्टाई, ये इरोजन एंड वर्किंग वॉल ऑफ द वेन्स ड्यू टू इन्फेक्शन, हार्ड स्टूल, ये सभी चीजें जो है हमें मदद करता है। तो ढेर सारे फिलॉसफीज और थ्योरीज है, लेकिन कोई एक कारण अभी भी हमें जानकारी नहीं है जो हमें इसके बारे में सही बात है, एक एग्जैक्ट कॉज हमें बताए। एक छोटा सा वीडियो है जो आपको हेमोरॉइड डेवलप होने के जो प्रोग्रेसिव
स्टेजेस है, ये आपको समझने में मदद करता है। ये ग्रेजुअली देखिए जो इंटरनल हेमोरॉयडल प्लेक्सस है, जब कॉन्स्टिपेशन की वजह से, हार्ड स्टूल की वजह से धीरे-धीरे ये एनगोल्ज होने लगता है और स्टूल का कॉलम जब नीचे उतरता है, तो इसमें रगड़ने लगता है, इसके ऊपर फ्रिक्शन होने लगता है। तो ये प्रोग्रेस एक दिन का तो है ही नहीं, ये लगातार होता रहता है, जिसकी वजह से ये म्यूकोसा धीरे-धीरे डैमेज हो जाती है। उसके बाद ये ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं और धीरे-धीरे ये बाहर आने लगता है। ये एक्सटर्न जो इंटरनल हेमोरॉयड है, धीरे-धीरे ये बाहर आने लगता है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ये धीरे-धीरे बनने लगता है बिकॉज़ ऑफ इट प्रोग्रेसिव गेटिंग डाउन ग्रेजुअली नीचे आने लगते हैं और उसी हिसाब से ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 की तरह हम बोलते रहे उसका ग्रेड करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ग्रेजुअली ये ब्लड वेसल से जो है ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट ब्लड लॉस होने लगता है और फाइनली देखिए ये एनाल कैनाल से बाहर आ जाता है। और ये देखने में ये जो तीनों एरिया जो हम बता रहे थे कि जो 11 o'clock, 3 o'clock और 7 o'clock जिसमें हेमोरॉयडल वेसल्स होते हैं, इन तीनों जगहों में ये इस तरह से प्रोट्रूड होके बाहर आते हैं। ये हो गया है उसके कैसे शुरू होता है ये बीमारी। तो कितने ज़्यादा लोगों में ये बीमारी होता है, हम कई बार इसके अंदाज़ नहीं लगा पाते हैं। ये जो है एक सबसे वन ऑफ द कॉमनेस्ट एनोरेक्टल प्रॉब्लम। देखिए at least 50% of the people above 50 years of age had some degree of hemorrhoids in formation. मैं एक चीज आपसे और शेयर करना चाहूंगा, ये जो हेमोरॉयडल हम प्लेक्सस या जो वेसल्स को देखते हैं, ये बेसिकली एक नॉर्मल एनल स्ट्रक्चर है, ये एबनॉर्मल नहीं है। लेकिन जब धीरे-धीरे प्रोट्रूड करके बाहर आ जाता है, तब ये एबनॉर्मल होता है। तो हेमोरॉयडल प्लेक्सस को रहना ये एक नॉर्मल है, लेकिन एनगॉर्ज होके बाहर आना ये एबनॉर्मलिटीज है। तो इसलिए सभी इंसानों को कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ प्रोट्रूजन्स होने लगते हैं और इसलिए 50% पीपल अबव द एज ऑफ 50 इयर्स हैव सम डिग्री। प्रिवलेंस ये मुझे लगता है थोड़ी सी कम है। आज के समय पर बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि करीब 30% के आसपास के जो पॉपुलेशन है वो हेमोरॉइड्स में हम सफर करते हैं। ये बहुत ज्यादा आप इमेजिन करके देखिए, जहाँ 140 करोड़ आबादी में करीब अगर आप देखें करीब हमारे पूरे देश में करीब 50 करोड़ की आबादी जो है हेमोरॉइड्स या हेमोरॉयडल डिजीज में हम सफर करते होंगे, कभी ना कभी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है एक संख्या है जिसकी वास्तव में इमेजिन करना बहुत कठिन पड़ता है। तो इसलिए देखिए चाहिए कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इसमें सफ़र करता है। होता इसमें पेशेंट प्रेजेंट क्या करता है? तो सबसे पहले एक तो मास जैसे प्रोट्रूड करता है, पेशेंट कंप्लेन कई बार करता है कि जब स्टूल पास करने लगता है तो टॉयलेट के रास्ते में ऐसे मस्से बनते हैं। और दूसरा जो है ऐसे देखिए जो जेट जैसा ब्लीडिंग होता है। आप दोनों पिक्चर्स को देखिए, इस पिक्चर्स में देखिए पेशेंट का जो ब्लीडिंग होती है दे जस्ट लाइक ए जेट की तरह, जैसे सिरिंज के जैसे निडल में जब जैसे आप जब पिचकारी जैसे आता है उसी तरह से। और पेशेंट का टिपिकल कंप्लेन भी ऐसे होता है। अगर आप केयरफुली देखें स्पेशली इन फीमेल पेशेंट को, इसकी नेल बेड्स को देखिए आप, ये पेल है। ग्रेजुअली द कलर ऑफ द स्किन आप देखिए, ये भी जो है येलोइश कलर है, ये एनीमिक है। मतलब ग्रेजुअल ब्लड लॉस होते होते दीज पेशेंट्स दे यूजुअली हैव एनीमिया। जहाँ पेशेंट एनीमिक होता है तो उसमें क्या क्या ढेर सारे अलग प्रॉब्लम्स होने लगता है। पुअर एपिटाइट, उनको डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, उनको इडिमा हो जाएगी, सांस फूलने लगेंगे, so many things they will develop, you see. But initially they start with a mass which comes out sometime, they may not, and there is a bleeding. Most importantly, the bleeding is a painless bleeding. And इस बात को हमेशा ध्यान रखिए टू द बिगिनर्स, खासतौर से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बिगिनर्स हैं, उनको हम कहेंगे कि हेमोरॉइड्स के जो अनकॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स होते हैं उसमें जो ब्लीडिंग होता है
उसमें पेन नहीं होता है, इस पेनलेस ब्लीडिंग, रिमेंबर इट इज। पेन होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं दूसरा समस्या है। तो पेनलेस ब्लीडिंग के साथ साथ the patient they have a pruritus, they have a constipation, they might have anemia, they have other problems because of blood losses. तो ये बेसिकली आप देखिए कि कैसे पेशेंट की तरफ कितने दूर ये ब्लड जो है बाहर निकालता है। तो ये हम आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के एक जो पेशेंट है उसको दिखाने के लिए मैं रखा हूँ। तो इतने जल्दी वेरी क्विकली द पेशेंट लूज ए गुड अमाउंट ऑफ ब्लड। कई बार डिफरेंट उसकी प्रेजेंटेशन होती है। जो मैंने पहली बार बताया था कि पेन नहीं होता है, लेकिन पेन कब होता है हेमोरॉइड्स में? जब कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे कि देखिए यहाँ अल्सरेशन हो गया, गैंग्रीन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, ये देखिए गैंग्रीनस है, थ्रोम्बोज्ड है। जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो हम पेन जहाँ पर देखते हैं ऐसे कंडीशंस के साथ होगा। और एक कंडीशन हमें भूलना नहीं चाहिए, वो एक्सटर्नल पाइल मास। हम पहले ही आपको बताया कि जो हेमोरॉइड्स होते हैं उसका एक एक्सटर्नल हेमोरॉइड होते हैं और एक इंटरनल हेमोरॉइड होता है। जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड है, जो एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेसल्स में ज्यादातर समय ये ब्लड क्लॉट्स उसमें जम जाते हैं और ये थ्रोम्बोसिस हो जाती है, ब्लड क्लॉट जम करके। इसमें जो है पेशेंट्स को पेन ज्यादा होने लगता है। तो इस तरह कंडीशंस में जब कॉम्प्लिकेशंस होता है हेमोरॉइड्स में, तब उसमें पेन होने लगता है। मैं एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा। ये हम लोग बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। देखिए एक्सटर्नल हेमोरॉइड वर्सेस एनल हेमाटोमा, ये जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं वो एक्सटर्नल हेमोरॉइड है। इससे पहले भी जो आप फोटोग्राफ्स देखे थे ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स है। ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड की कंपोनेंट है। ये जो कंपोनेंट है ये इंटरनल हेमोरॉइड बाहर आकर के ये थ्रोम्बोज्ड हो गया है। उसी तरह से ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड है। लेकिन ये जो कंपोनेंट देख रहे हैं देखने में तो एक्सटर्नल हेमोरॉइड जैसा लगता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये हेमाटोमा है। हेमाटोमा शब्द का अर्थ है कि ब्लड के क्लॉट होकर के चमड़े के नीचे जम जाना। ये ऐसा ही सिचुएशन है जो ज्यादातर समय हम मिस्टेक करते हैं, एक्सटर्नल हेमोरॉइड समझ बैठते हैं। उसमें होता है कपड़े के नीचे ऐसे जम जाता है और ये हेमाटोमा है। हेमाटोमा मीन्स एक क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अंडर द स्किन से। वो जब हम उसको निकाल देते हैं ऐसे तो इस तरह से होता है। ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड है, ये हेमाटोमा है। तो ज्यादातर समय ऐसे जो कंडीशंस होते हैं, क्योंकि अपना ही ब्लड चमड़े के नीचे छोटा सा ब्लड वेसल रप्चर होकर क्लॉट बन जाता है, तो इसलिए उसको हम लोग कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अनटिल अनलेस वो सेकेंडरी इन्फेक्टेड होता है, वो ग्रेजुअली एब्जॉर्ब हो जाता है। थोड़ी समय लगती है, 3 हफ्ता 1 महीना समय लगता है। अगर हम उसको ना रगड़े, इन्फेक्शन अगर ना हो तो स्वतः ये एब्जॉर्ब हो जाता है और वो बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन एक्सटर्नल हेमोरॉइड कंपोनेंट ये ऐसे ही बना रहता है, जो एक ब्लड वेसल्स है, ये वेन का एनवायरमेंट है, ये ब्लड की क्लॉट है। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा दोनों कंडीशंस के लिए। देखिए ये जितने भी फोटोग्राफ्स देख रहे हैं देखने में लगता है सब हेमोरॉइड्स है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स है, लेकिन इनमें एक भी एक्सटर्नल हेमोरॉइड नहीं है। ये सब फिस्टुला के जो है एक प्रेजेंटेशन है, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, एटिपिकल प्रेजेंटेशन है, जहां पर एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स के जैसा दिखते हैं, लेकिन ये ग्रैनुलोमास है, ये इन्फेक्टेड ग्रैनुलोमा है। इसमें छेदा है, ये देखिए प्रोब चला जाता है, ये ग्रैनुलोमा है। और ये ग्रैनुलोमा बन करके ये ट्रैक्ट बना हुआ है, धीरे धीरे एनल कैनाल के अंदर वो कम्युनिकेट करता है। सभी में यही है, यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसे है, यहाँ पर भी ऐसे है। ये सब देखिए इसके अंदर सब प्रोब चला गया है। सो ये फिस्टुला का ओपनिंग है, कई बार ग्रैनुलोमा की वजह से हमें दिखता है और इसमें डिस्चार्ज भी बहुत कम होता है, इसलिए कई बार हम मिस्टेक करते हैं। इसलिए सभी पेरिनल स्वेलिंग जो है पाइल्स नहीं होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल हेमोरॉइड्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड है वो बिल्कुल बाहरी हिस्से से होती है और इंटरनल हेमोरॉइड जो है वो अंदरूनी हिस्सा से होता है, पेक्टिनेट लाइन के ऊपर से होता है। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी से बनती है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी या विनस प्लेक्सस से बनती है।
इसमें ज्यादातर समय जो है ये बहुत पेनफुल होता है। ये हमने पहले ही बताया था कि जो इंटरनल हेमोरेज से पेन होता है, ये ज्यादातर समय एक्सटर्नल हेमोरेज थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ये प्रोलैप्स होकर बाहर आने लगता है। तो कैसे डायग्नोसिस करें? सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो अंगुली से हेमोरॉइड्स की डायग्नोसिस कठिन पड़ता है। क्यों कठिन पड़ता है? क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं जो होता है, तो वो फुला हुआ महसूस नहीं होता है अंगुली से, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं होते। तो इसलिए कहते हैं कि बेहतर है कि आप देखिए उसको करेंगे तो ऐसे मासेस आपको ब्लूइश कलर के दिखने लगेंगे। तो कई बार हमें दूसरे चीजों को भी जरूरत पड़ती है, जैसे सिग्मोइडोस्कोपी, और कई बार अगर बहुत ज्यादा होता है तो कभी कभी एनेस्थीसिया में भी मरीज को देखने की जरूरत पड़ती है। एनल मैनोमेट्री, ये टॉयलेट जो एनल मसल्स के टोन को समझने के लिए हम एनोरेक्टल मैनोमेट्री करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एनोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप ये अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी लेंथ के ऊपर कितने गहराई तक आप देखना चाहते हैं। ज्यादातर एनोस्कोप जो है ये सफिशिएंट है फॉर हेमोरॉइड्स के डायग्नोसिस के लिए लेकिन कई बार आपको और गहराई तक देखना है तो डिफरेंट लेंथ को 25 सेंटीमीटर तक लंबे रेक्टोस्कोप है, फ्लेक्सिबल स्कोप अवेलेबल है आजकल, पॉली जो ट्रांसपेरेंट स्कोप्स आर अवेलेबल है, विथ लाइट सोर्सेस अवेलेबल है, रेक्टम को इन्फ्लेट करने के लिए अवेलेबल है, वीडियो कोलोनोस्कोप वीडियो रेक्टोस्कोप के साथ अवेलेबल है, यू कैन टेक ए पिक्चर ऑफ इट। There are different types, so you can convince, you can see, you can keep the patient's record also. So these are the available instruments which you can use for diagnosis of hemorrhoids. तो आप हम कई बार सिग्मोइडोस्कोपी भी करते हैं। एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिसको हम एनल कैनल के अंदर डालते हैं। देखिए देखने में दिखता है जैसे एक्सटर्नल हेमोरॉइड है। कई बार हम देखे हैं कि बहुत सारे लोग इसको ऑपरेट करके भी भेज देते हैं कि मस्सा काट के निकाल दिया है। लुक एट यूसी, बिगिनर्स के लिए खास तौर से देखिए, जब भी आप इस तरह से पेशेंट्स देखते हैं तो केयरफुली देखिए कहीं ये ग्रोथ तो नहीं है। ये देखिए बेसिकली एनल ग्रोथ है, ये भी एनल ग्रोथ है। तो देखने में कई बार ऐसा लगता है कि जो एनल ग्रोथ है हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नॉर्मली ये क्या होता है कि थोड़ी फर्म होती है, बहुत आसानी से ब्लीड करता है, काफी टफ होता है, ये फिक्सिटी है, ये टिश्यू के अंदर घुस जाती है ट्यूमर सेल्स, इसलिए ये नरम नहीं रहता, ये स्किन और आसपास के एरिया, और ये भी वैसे ही है। तो इसलिए इन चीजों को मरीजों को आपको देखने के लिए एक अनुभव होना चाहिए, और जहाँ पे आप काम करते हैं धीरे धीरे आप उसको समझते हैं और इसको एक डेफिनेटली आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कई बार हम इसकी एक्सटेंट को समझने के लिए तो हम सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी को हम प्रेफर करते हैं। ये एक दूसरा आप दिखता है, ये देखने में थोड़ी सी अलग से दिखता है, ये हेमोरॉइड जैसे नहीं है, पॉलिप जैसा है। तो ये पॉलिप कई बार छोटे बच्चों में भी होती हैं, जो हम जिसको जुवेनाइल पॉलिप बोलते हैं, कुछ बड़ों में भी होती है। जैसे देखिए यहाँ मल्टीपल है तो एक मल्टीपल फैमिलियल पॉलिपोसिस एक बीमारी होती है, जहाँ देखिए इसमें हम पूरे इंटेस्टिन को, लार्ज इंटेस्टिन को काट के निकाल दिए हैं, क्योंकि पूरे इंटेस्टिन में ऐसे पॉलिप्स पूरे भरे हुए हैं। इसको हम मल्टीपल फैमिलियल पॉलिपोसिस बोलते हैं। ये बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इतनी ब्लीडिंग और इतनी परेशानियां होती हैं कि मरीज धीरे धीरे जीना मुश्किल हो जाती है, बहुत कम उम्र में ये सब मर जाते हैं। आप अगर बहुत आपको सुखद आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद में ऐसे कंडीशंस को जैसे क्लासिकली आप मॉडर्न मेडिसिन में देखते हैं, वैसे डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में अवेलेबल है, जिसको हम सहज अर्श के रूप में जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सहज अर्श में जो थोड़ी मुश्किल से ये दिखता है, ये थोड़ी डीप होते हैं, वो मातृ और जो जेनेटिक कंपोनेंट से ये बीमारी होती है। तो इस तरह का एक बीमारी का डिस्क्रिप्शन आप अगर थोड़ी सी डिटेल, क्योंकि एक अलग टॉपिक है, कभी अगर सौभाग्य हुआ तो आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे कि सहज अर्श और आयुर्वेद के जो चिकित्सा की पद्धति है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है।
जो मॉडर्न मेडिसिन में हम करीब मल्टीपल फैमिलियल पॉलीपोसिस के साथ उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये ग्रेड्स के बारे में अभी बात कर रहे थे, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 हम सभी लोग जानते हैं। ग्रेड 1 नहीं दिखते हैं, अंदर रहता है। पेक्नेट लाइन का ये भी नहीं दिखते हैं। ग्रेड 3 जब स्टूल पास करते हैं तब बाहर आने लगता है, फिर अपने आप चला जाता है। ग्रेड 4 है हमेशा बाहर रहता है, प्रोलैप्स हो जाता है। तो ये सभी में ब्लीडिंग हो सकती है 1 से लेकर के 4 तक। कभी ब्लीडिंग में दिखता है ना, कभी मास दिखता है, कभी नहीं दिखता है, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। तो ट्रीटमेंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो ज्यादातर समय जो मॉडर्न मेडिसिन में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डायटरी थेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नॉन ऑपरेटिव ऑफिस प्रोसीड्यूर्स, ऑपरेटिव प्रोसीड्यूर्स और मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीड्यूर्स। ये बेसिकली 4 कैटेगरी है, मेडिकल मैनेजमेंट है। तो हम ग्रेजुअली धीरे-धीरे सबके बारे में बात करना चाहेंगे। ऑफिस प्रोसीड्यूर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या करते हैं कि ज्यादातर समय हम आयुर्वेद में भी ऐसे ही चिकित्सा पद्धतियां हैं जिसमें छार है, वो हम आएंगे। आयुर्वेद पूरे चिकित्सा के लिए मैं थोड़ी सी अलग से रखा हूँ, जो जिस मॉडर्न मेडिसिन के अभी जो प्रचलित इसमें स्क्लेरोथेरेपी एक ऐसे इंजेक्शन हैं या केमिकल्स हैं जो लगा देते हैं, तो इंजेक्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे वो सिकुड़ जाता है, कई बार घाव बना देता है अगर आप कायदे से नहीं करते हैं। बहुत प्रचलित है कि टीका लगा देते हैं और बवासीर में टीका लगाते हैं, लोग कम पैसा लगता है बहुत दौड़ते हैं। तो अगर वो गलत तरीके से जब लगता है तो उसमें अल्सर मिलती है, निक्रोसिस हो जाती है, स्ट्रक्चर बन जाता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन बन करके हाइड्रोजेनिक फिस्टुला बन जाते हैं। उनको ट्रीट करना बहुत कठिन होता है। इसलिए स्क्लेरोथेरेपी करने से पहले बहुत बार सोचिए, कायदे से करिए, नहीं जानकारी है तो ना करिए। इंफ्रारेड कोआगुलेशन बहुत यूजफुल अभी नहीं लगता है, लेकिन कभी ये प्रचलित था। बैंड लाइगेशन ये बेहद कॉमन है, रबर बैंड लाइगेशन ऑफिस प्रोसीड्यूर है। इसकी आउटकम बहुत अच्छा है कि जो ग्रेड छोटा पाइल मास है, जिसके लंबे पाइल मास है और पेडिकल छोटा है, उसमें से बहुत आसानी से इसको लगाया जा सकता है। एक बार में एक पेडिकल को लगाइए और दूसरा एक पैसा कम मिलता है, इसलिए बहुत ज्यादातर डॉक्टर्स इसको पसंद नहीं करते। बट वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ग्रेड 2 हेमोरॉइड्स, इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्सेस है। क्रायो सर्जरी किसी जमाने में ये बहुत प्रचलित था कि बहुत टेम्परेचर को बहुत कम करके टिश्यू को डैमेज कर देना। तो बाद में क्या होता है कि इसमें काफी लंबे समय तक डिस्चार्जेस होती रहती है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन अब बहुत प्रचलित रह नहीं गया है। तो मैनुअल डायलिटेशन जिसको हम लॉर्ड्स प्रोसीड्योर करते हैं, ये भी अब प्रचलित नहीं रहा है। स्फिंक्टरोटॉमी, लैटरल स्फिंक्टरोटॉमी, ये सब भी कई लोग करते हैं, लेकिन ये सब बहुत प्रचलित नहीं है। जो मेजर जो ऑफिस प्रोसीड्यूर्स है, रबर बैंड लाइगेशन और स्क्लेरोथेरेपी, दे आर वेरी कॉमनली यूज्ड। Out of his, I probably prefer, you see, the band ligation, which is very effective. Only complication that sometimes it causes bleeding, you see, post-operative. स्क्लेरोथेरेपी, ये देखिए ग्रेड 1 ग्रेड 2 हेमोरेड्स में फिनॉल यूज करते हैं। अभी बहुत सारे नए स्क्लेरोलाइजिंग एजेंट्स आर अवेलेबल, बट जो ट्रेडिशनली आलमंड ऑयल 5% फिनॉल इन आलमंड ऑयल भी स्क्लेरोथेरेपी में ये उसकी प्रॉब्लम्स होते हैं कि इडिमा है, पेन है, कई बार हमने आपके बारे में बताया कि इन्फेक्शन है, ये सब संभव है। ये रबर बैंड लाइगेशंस के बारे में, ये देखिए रबर बैंड्स को जो है इस तरह से पकड़ के इसको सॉरी स्क्लेरोथेरेपी के आप देख करके यहाँ इंजेक्शन लगाते हैं। म्यूकोजा में नहीं लगाना चाहिए, ये ब्लड वेसल्स के आसपास लगाना चाहिए। स्क्लेरोथेरेपी के बाद एब्सेस फॉर्मेशन, फिस्टुला है, ये सब उसकी कॉम्प्लिकेशंस है, ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस होता है। ये रबर बैंड लाइगेशन है, ये इस तरह से तो पाइल मास इसके अंदर बैरल के अंदर पुल करके इस बैरल से एक रबर बैंड इसके अंदर चला जाता है और इसकी बेस को बांध देते हैं, तो बैरल बैंड्स बोलते हैं इसको। तो इससे बेहद इफेक्टिव है ये, और ये पाइल मास जो है ये खत्म हो जाती है इससे। ये देखिए इस तरह से ये काफी इफेक्टिव है। 24 घंटे के अंदर ये नेक्रोसिस हो जाता है, 5-7 दिन के अंदर ये स्लप आउट हो जाता है और ये काफी बढ़िया रहता है इसका। कभी कभी सेकेंडरी ब्लीडिंग इसमें हो सकता है। एनल स्टेनोसिस और अनयूजुअल बहुत कम है,
अगर आप वन आफ्टर वन करते हैं, वेसोवेगल शॉक, ब्लीडिंग, दे आर समटाइम दे आर पॉसिबल। म्यूट हो गया सर, आपका आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया। एक्सक्यूज मी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो माइक म्यूट हो गया। Kindly wait for 2 Am I minutes. audible now? Yes, sir. अभी ऑडिबल है? यस सर। Yes, ओके sir. ओके ओके, तो मैं फिर दोबारा आता हूँ फिर। तो हाँ, लेट अस स्टार्ट क्विकली। तो जो मेजर प्रोसीड्योर्स है जो हम बात करना चाहते हैं कि सर्जिकल प्रोसीड्योर्स के लिए, जिसमें हम हेमोरॉइडेक्टमी बोलते हैं, जो मिलिगन मॉर्गन प्रोसीड्योर्स है, आज भी एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। क्या कहते हैं कि करीब 200 साल के आसपास होने चला है। ये आज भी उतना ही प्रचलित है और सबसे ज्यादा प्रोसीड्योर्स करते हैं। ये आप देख रहे हैं हेमोरॉइडल मास है इसको, और इसके जो है क्या करते हैं कि इस बेस पर एक इंसिजन लेते हैं। इंसिजन लेकर के ये देखिए हमने इसको धीरे धीरे इसको काटा है। इसको स्किन को काटने के बाद इसको पेडिक्यूल्स को अलग करते हैं। अलग करके हाँ उसको लाइगेट, ये जो निडल थ्रेड से इसको हम लोग लाइगेट करते हैं। ये निडल से इसको लाइगेट करते हैं। लाइगेट करके इसको हम जो अच्छे से इसको जब लाइगेट करते हैं तो इसको जो हेमोरॉइडल मास को हम काट के निकाल देते हैं। ये ओपन हेमोरॉइडेक्टमी बोलते हैं। तो ये एक मास हो गया। इसी तरह से दूसरा, इसी तरह से तीसरा, 3 हेमोरॉइडल मासेस को निकाल देते हैं और ऑपरेट के बाद ऐसे जैसे स्कार बनता है। ये बेसिकली काफी प्रचलित है, लेकिन ब्लीडिंग है, पेन है, थोड़ी डिफिकल्टीज है, ये इस तरह का प्रॉब्लम्स है। कई बार पेशेंट को प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होने लगती है, पेन है, रिटेंशन ऑफ यूरिन, स्ट्रिक्चर अगर आप कायदे से नहीं करेंगे, इनकॉन्टिनेंस एंड स्ट्रिक्चर, दे आर सम ऑफ द ये कॉम्प्लिकेशंस है। इस तरह से जो हेमोरॉइड देखिए किसी ने सब ऑपरेट किया है, कितने डैमेज एनल एरिया को किया है, जिसमें पूरा इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। तो ये सब उसकी कॉम्प्लिकेशंस है। तो अगर आप कायदे से नहीं करेंगे तो इसके समस्याएं हैं। उसका दूसरा समस्या है कि आप स्ट्रिक्चर बना देते हैं। इसमें देखिए ये सब कुछ सर्जरी की वजह से हुआ है, कुछ कई बार स्ट्रिक्चर बन जाते हैं। दोनों कंडीशन, जैसे इस पेशेंट में किसी ने क्षार एप्लीकेशन किया था जिसके चलते पूरे एनल एरिया की स्किन डैमेज हो गया था। तो ये सब चीजें सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से ये सब बनती है। दूसरा जो प्रोसीड्योर्स आता है इसको हम क्लोज हेमोरॉइडेक्टमी बोलते हैं, जो हम हेमोरॉइडल मास को काट करके हम ब्लड वेसल्स को अंदर बरी कर देते हैं, स्टम्प को बरी कर देते हैं। इसको हम क्लोज हेमोरॉइडेक्टमी बोलते हैं। छोटे हेमोरॉइडल के लिए बहुत अच्छा है। ये क्लोज हेमोरॉइडेक्टमी का प्रोसीड्योर्स है। मैं हार्मोनिक स्कैल्पेल, ये एक दूसरे तरह का है जहाँ पे हम इसको कोआगुलेट कर देते हैं, पूरे ब्लड वेसल्स को एक फ्रीक्वेंसी कोआगुलेशन के माध्यम से जो है हम इसको कोआगुलेट कर देते हैं। अभी जो बहुत प्रचलित है, काफी जैसे लोंगो ने उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे 1995 में। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री में ये आज प्रचलित नहीं है, लेकिन इंडिया में आजकल लोग बहुत करते हैं। MIPH बोलते हैं इसको, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीड्यूर्स फॉर हेमोरॉइड्स। स्टेपल हेमोरॉइडेक्टमी बोलते हैं हम इसको। एक स्टेपल की तरह इसको फायर करते हैं तो एक साथ तीनों हेमोरॉइड्स काट के बाहर आ जाते हैं। तो उसकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है, कॉम्प्लिकेशंस भी है। हम इन चीजों को इन जगहों पर डिस्क्राइब करने में काफी समय लग जाएगा, तो हम उसको धीरे धीरे इन प्रोसीड्यूर्स को कभी समय मिलेगा तो हम डिस्क्राइब करेंगे। एक कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हमने देखा है जिनको हम लोगों ने
लोगों ने MIPH किया है, उसके जो स्टेपल्स होते हैं, जो मेटल स्टेपल्स होते हैं, कई बार रह जाने के बाद ये अल्ट्रासाउंड है एनल कैनाल की, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी, तो उसमें क्या है कि ये एब्सेस बन जाता है। ऐसे जो है ऑपरेशन के बाद ये मेटल का पोर्शन रह गया है, इसके चारों तरफ इन्फेक्शन होकर के बन जाता है। उसके अलावा ब्लीडिंग है, स्ट्रिक्चर है, ये सब बहुत कॉमन है। ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कि हम हेमोरॉयडल मास को इस तरह से पकड़ते हैं, पकड़ के इसको एक बार में इसको स्टेपल कर देते हैं, काट देते हैं, जो कि जो रिंग जैसा दिखता है, ये पूरा हेमोरॉयडल मास बाहर आ जाता है। इससे डिफिकल्टीज भी बहुत होते हैं लेकिन काफी प्रचलित रहते हैं उसमें से। तो लेजर कोआगुलेशन भी है। ये सब ट्रीटमेंट जो है आजकल सभी अवेलेबल है। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक पेशेंट है, देखिए ये हेमोरॉयडल मास है जिसमें मेगट्स हो गया था। देखिए अगर आप हमने इसको क्लोजअप पे जब देखते हैं, ये मेगट्स है यहाँ पर, तो इन्फेक्शन होकर के मेगट्स हो गया था। तो जब हम लोगों ने इसको कायदे से जब मेगट्स को रिमूव किया, कुछ दिनों के बाद जब हम लोगों ने देखा ये सब गैंग्रीन होकर के, मेगट्स क्या करते हैं, आप आयुर्वेद में सभी लोगों ने जानते हैं कि मेगट्स आयुर्वेद में ट्यूमर के ट्रीटमेंट में जो है सुश्रुत ने एडवोकेट किया है कि जो इनऑपरेबल ट्यूमर होते हैं उनमें आप मेगट को इनवाइट करिए बाय यूजिंग उसे सरसफ है, बहुत सारे उड़द की दाल है, ये सब अगर आप पीस के रखेंगे तो उसमें मेगट्स पैदा होता है और उस मेगट्स को धीरे धीरे ट्यूमर को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे ही यहाँ पर मेगट स्पॉन्टेनियसली पैदा हुआ है और ये पूरे नेक्रोटिक मास को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको खा गया है और अल्टीमेटली देखिए ये जो हेमोरॉयडल जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को अभी मॉडर्न मेडिसिन में हम लोगों ने वुंड डिब्राइडमेंट के लिए यूज करते हैं और मेगट्स आर नाउ अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वुंड डिब्राइडमेंट, जो कि US FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जो बेसिकली किसी एक समय सुश्रुत का जो कॉन्सेप्ट है उसी से हम लोगों ने लिया है, लेकिन वो चिकित्सा का जो पद्धति है अभी जो है वुंड मैनेजमेंट के लिए काफी यूज होती है। प्रिवेंशन, हम हेमोरॉयड प्रिवेंट कर सकते हैं काफी हद तक। ये जो है डाइट के, हमारी लाइफस्टाइल से, ये सब के साथ अगर हम देखें तो वेग ना धारण करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गो एज सुन एज यू फील अर्ज, डोंट स्ट्रेन, अवॉइड लॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग एंड एक्सरसाइज, फाइबर सप्लीमेंट और डाइट है ना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ये एक ब्रीफ है मॉडर्न मेडिसिन में जो आधुनिक वर्तमान समय पर हम अर्श की चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। मैं हमारी अपने सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो चिकित्सा के बारे में बात है तो उसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे। अर्श शब्द से जो लिटरल मीनिंग है वो फ्लेशी मांस है। ब्लीडिंग देखिए और नॉन ब्लीडिंग, तो आर्द्र एंड शुष्क ये जो है इनके वेरिएंट्स होते हैं, डिस्चार्जिंग एंड नॉन डिस्चार्जिंग, पुअर एपेटाइट, इम्प्रॉपर डाइट, स्ट्रेनिंग, ये सब सभी चीजें देखिए जो हम मॉडर्न मेडिसिन में अभी देख के आए हैं, ये सभी पैरामीटर्स अगर आपको देखेंगे आयुर्वेद में इटियोलॉजी के लिए, ये जो फेमिलियल बात करते हैं वो फेमिलियल है, जो सहज अर्थ है उसमें आयुर्वेद में बोला है कि अर्थ जो है फेमिलियली होता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट, पैरासर्जिकल, ये थर्मल एब्लेशन, अग्निकर्म है, लोकल एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल, क्षार कर्म है और सर्जिकल एप्लीकेशन। मतलब चिकित्सा का ये चार विधाएं जो है, क्षार, अग्नि, शस्त्र और औषधि, ये आयुर्वेद का चिकित्सा का पद्धति है। क्या करना है, स्टॉप इसे जो हमारा अग्नि को हम मेंटेन रखें। तो पहला बात यह है अग्निमांद की चिकित्सा होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि ये जो मूत्र और पुरुष की वेग धारण ना करें और हम उसकी स्ट्रेन ना करें। ये दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो सुश्रुत के जो है चिकित्सा के सिद्धांत के ऊपर हमें देखता हूँ और मुझे बेहद सही लगता है। तो पॉजिटिव फैक्टर जो चिकित्सा का मूल बात है कि आप जो कारण, जिस कारण से ये बीमारी अर्श होता है, आप उसको आप एलिमिनेट करिए। दूसरा जो है
जब बन जाते हैं तो उसको पहला काम ये है कि आप डाइट, लाइफ़स्टाइल की जो है आप करेक्शन करिए और दूसरा जो है ये इंडिविजुअली किसी एक पर्टिकुलर टाइप की मैनेजमेंट इसके लिए सही नहीं है। तो बोथ मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट जब ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप सही तरीके से करेंगे तो भी सक्सेस बनते हैं। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में एक्सिजन है, स्वस्थ कर्म, अग्नि कर्म, क्षार कर्म है आयुर्वेद में, करेक्शन ऑफ डाइजेस्टिव फंक्शन, करेक्शन ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड बाउल हैबिट, स्टेबलाइजेशन ऑफ एनल एपिथेलियम, ये बेसिस है। ये एक डायग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया था सुश्रुत के डिस्क्रिप्शन के आधार पर, जहाँ पर उन्होंने मरीज को पूर्वाभिमुख सूर्य की तरफ उन्होंने प्लेस किए थे और 2 बलवान सहायक के साथ उन्होंने उनको रखने के लिए बोले। हेलो, और उनको जंत्रस्थ करना है, पुटिंग ए पिलो अंडर द इसलिए all surgical procedures, application of char and agni to be done in anal canal with extreme care. ये उनका एक पोजीशनिंग है जो काफी हद तक लिथोटमी पोजीशंस के बराबर है। हम लोगों का कुछ स्टडीज था जो हम लोग बेहद अभी बहुत सारे लोग इस काम को करते हैं, बहुत सक्सेसफुली करते हैं और हमारे बहुत सारे आरएवी के गुरु खास तौर से जो जो लोग इसके क्षार और अग्नि कर्म के बारे में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सक्सेसफुली इस ट्रीटमेंट को करते हैं। जो प्रतिसाड़ियन क्षार ये बनाने का विधि डॉक्टर परवेज जी ने जो है इसके बारे में काफ़ी काम किए हैं और काफ़ी काम हमारे डिपार्टमेंट में भी हुआ है। कुछ उनके मदद से भी हम लोगों ने काम किया था। तो जो जिस तरह से क्षार अगर हम उसको प्रिपेयर करके क्षारोदक और क्षार ये दोनों होना चाहिए। बिना क्षारोदक से क्षार का पोटेंशियल नहीं रहता है। जब आप ग्रीन बनाना लीफ में क्षार को लगाएँगे तो कुछ समय के बाद ये बर्न हो जाता है आफ्टर ए मिनट टाइम। बाक सा हो जाता है तो उसका पोटेंशियल ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह के स्टडी करके देखा है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस के रिंग बनाए थे ताकि क्षार की स्पिलेज ना हो, इसके चारों तरफ से मेजर कर सके और उसमें एप्लीकेशंस इस तरह से कॉस्टिक मटेरियल को हम यूज करते हैं। लगाने के बाद उसका कृष्ण वर्ण जो है इससे ऐसे प्राप्त हो जाता है और कुछ समय के बाद उसको हम लोग जो है लगाने के एप्लीकेशंस के बाद जो है ल्यूक वाटर से या अम्लत से कांजी या नींबू के जो है पानी से इसको उसको क्लीन कर लेते हैं और ग्रेजुअली अगर आप देखें तो ये जामुन के फल के बराबर हो जाती है। देखने में ब्लैकिश कलर होता है। ग्रेजुअली नेक्रोसिस होकर के ये हेमोरेडल मास को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि रबर बैंड लाइगेशन इन सब प्रोसीड्यूर्स में भी होता है। लेकिन क्षार एप्लीकेशन में एक खासियत क्या है कि काफ़ी जगह जो है फाइब्रोसिस होती है। जो एनल कुशन है वो काफ़ी हद तक फाइब्रोसिस हो जाती है। इसलिए ये जो रबर बैंड लाइगेशन से ये काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आप अनजुडिशियसली करने पर जैसे मैंने पहले दिखाए थे ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। प्रेफरेबली एक ही हेमोरॉयडल मास एक बार में करिए तो कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, पेन कम रहता है और पेशेंट्स की कंप्लायंस काफ़ी अच्छा रहता है। ये उसका इफेक्ट है एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट ऐसे बनते हैं। तो इसलिए मैं अपने प्रेजेंटेशन के करीब-करीब अंतिम छोर पर मैं आ गया हूँ। तो हेमोरॉयडल जो बीमारी है हेमोरॉयड्स, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक कॉमन डिजीज है
ग्लोबली अवेलेबल है। मैंने समराइज किया है कि प्राइमरीली एक मेडिकल प्रॉब्लम है। इस आयुर्वेद के जो बेसिक फिलॉसफी है, Excuse me, sir, तो you are not इसलिए audible. अग्नि का चिकित्सा इसमें होना चाहिए, पहला बात है। हेलो Yes, Hello. sir, now it's audible, sir. The previous slide, whatever you Okay. have explained, was not audible. अच्छा, हेमोरॉइड्स में लास्ट स्लाइड पे फिर 1 मिनट आता हूं मैं। हेमोरॉइड्स आर अमंग मोस्ट कॉमन डिजीजेस। ढेर सारे, इसमें ये कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि इस बीमारी के हजारों साल से हम जानते हैं, ढेर सारे पब्लिकेशंस हैं, ढेर सारे लिटरेचर अवेलेबल है, लेकिन उस बीमारी के जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम बहुत कम जानकारी रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रीटमेंट के बाद ये बार-बार होने लगता है। सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स के बाद भी कुछ समय के बाद ये प्रॉब्लम्स दोबारा होने लगते हैं। तो इसलिए इसके बारे में जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशंस है, ये एज ए टेक होम मैसेज मैंने एक स्लाइड बनाया हूँ, जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि प्राइमरीली एक मेडिकल प्रॉब्लम है। सर्जरी इज ओनली रिक्वायर्ड जब वो ओनली इन वेरी लेस नंबर ऑफ पेशेंट्स, और जब कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, ऐसे सिचुएशंस में सर्जिकल प्रॉब्लम्स की जरूरत पड़ती है, सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज जो आयुर्वेद का फिलॉसफी है, अग्नि इज द प्राइम इंपॉर्टेंस इन द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। अग्नि की चिकित्सा होनी चाहिए, जो कि आयुर्वेद के जो है चिकित्सा के मूल सिद्धांत अर्थ का। तीसरा बात क्या है कि करेक्शन ऑफ बाउल हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग एंड प्रोलैप्सिंग हेमोरॉइड। अगर आप ब्लीडिंग और हेमोरॉइडल प्रोलैप्स को अगर मैनेज करना है तो बाउल हैबिट को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ज्यादा हमारे जो ज्यादातर लोगों को हमें पता नहीं कि नॉर्मल टॉयलेट टाइमिंग इज अराउंड ए मिनट, 1 मिनट। हमें टॉयलेट में हम लोगों ने एक स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि जो नॉर्मल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो एवरेज टॉयलेट टाइमिंग है वो 10 मिनट के आसपास है, विच इज लॉन्गर देन द एवरेज पीपल यू सी। तो वो जो है हमारी रूटीन जो डाइट है, आजकल के समय पर अखबार लेके टॉयलेट जाना, मोबाइल लेके टॉयलेट जाना, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, इन सब चीजों से बच्चों में जो उनकी टॉयलेट टाइमिंग के बारे में जानकारी ना होना एक बेहद इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स के लिए, स्पेशली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेमोरॉइड्स। तीसरा है कि यूज ऑफ लॉन्ग टर्म लैक्सेटिव। जब भी कोई पेशेंट हेमोरॉइड्स लेकर के आता है तो तुरंत बोलता है कि उसको लैक्सेटिव दे दो। नहीं, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ लैक्सेटिव्स दे डू ए हार्म रादर देन ए बेनिफिट। द कोलन गेट ग्रेजुअली स्लगिश एंड दे डोंट वर्क, यू सी। ये इसलिए जो है लॉन्ग टर्म स्पेशली इरिटेंट परगेटिव्स का यूज कम से कम होना चाहिए। सर्जिकल इंटरफेरेंस में भी डन इज ए वन टाइम सॉल्यूशन। सर्जरी करने पर एक बार के लिए उस सॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसलिए सर्जरी करने से पहले मेटिकुलसली ऑब्जर्व करना चाहिए कि हमें सर्जरी कब करना चाहिए। हम जब बिगिनर्स थे तो ढेर सर्जरी करते थे हेमोरॉइड्स के, बाद में जब मैच्योर हुए तो सर्जरी करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो 10% से नीचे चला गया है। इसलिए हेमोरॉइड्स आर प्राइमरीली टू बी ट्रीटेड मेडिकली। एंड नाउ जो आयुर्वेद के जो फिलॉसफी है, जैसे कि स्टूल अगर हार्ड हो तो लैक्सेटिव चाहिए, जिनको डायरियल प्रॉब्लम है तो उनको जो है कुटज है, बिल है, ऐसे औषधियों के प्रयोग से हेमोरॉइडल प्रॉब्लम्स को काफी हद तक हम कम कर सकते हैं, स्ट्रेनिंग कैपेसिटी को कम कर सकते हैं, पेशेंट का एजुकेट करके इन चीजों को कम कर सकते हैं। इसलिए जो सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स हैं ये केवल बहुत कम नंबर ऑफ पेशेंट्स के लिए जरूरत पड़ता है। इसलिए हेमोरॉइड्स की जो मैनेजमेंट है प्राइमरीली टू बी फोकस्ड ऑन मेडिकल मैनेजमेंट, डाइट और टॉयलेट हैबिट ट्रेनिंग, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।
मैं आप सबको खास तौर से आरईवी के जो टीम है इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज 157th एपिसोड आज के लिए मुझे बोलने के उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिए और आप सब लोगों ने सुने, इसलिए मुझे आप सबको मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। कोई अगर प्रश्न हो, कोई डिस्कशन करना हो तो मैं आपको सादर आमंत्रण करता हूँ या आपके क्वेश्चंस के लिए मेरा धन्यवाद। Thank you so much, sir. If anyone is having any doubt, they can ask. हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आपने बताया हेमाटोमा जो बन जाता है सर। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से, एक बार बताइए। हेलो सर, आपने एक्सप्लेन किया एनल हेमाटोमा बन जाता है व्हिच रिजॉल्व बाय इटसेल्फ। एनल हेमाटोमा? यस सर। सर समटाइम Okay. इट कंफ्यूज कि ये हेमोराइड्स है और ये पेशेंट ये भी कंप्लेंट करता है कि कभी निकल जाता है और कभी चला जाता है। तो सर व्हाट कैन वी डू बाय कंजर्वेटिवली मेथड और बाय मेडिकली मेथड? नॉर्मली एनल हेमाटोमा जिसमें अगर हम देखते हैं दे आर यूजुअली स्मॉल और मे बी ऑफ डिफरेंट साइज, दे आर डिस्क्रीट इन साइज और वो ब्लड क्लॉट है। अगर बहुत इंटेंस पेन अगर नहीं होता है तो अगर आप उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में छोड़ दें, द ओनली थिंग दैट डोंट आस्क द पेशेंट टू रब इट एंड टू so that you see it should not get infected secondarily. Gradually with some sort of a anti-inflammatory drugs, normally हम जब पहले इनिशियली जब हम काम करते थे तो ज्यादातर समय पेशेंट आता तो मैं ओपीडी में उसको ऑपरेट कर देता था, लेकिन ग्रेजुअली मैंने देखा है कि ज्यादातर समय इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर पेशेंट को आप कन्वे करते हैं, कन्विंस करते हैं कि अपना ही ब्लड है, धीरे धीरे अब्जॉर्ब हो जाएगा। यूजुअली फर्स्ट 1 or 2 days इट कॉज पेन यू सी। तो मरीज जब अगर इमीडिएटली नहीं आता है, 1-2 दिन के बाद आता है तो पेन कम हो जाता है। तो इनिशियली 1 or 2 days with some sort of analgesic and guggles, they are very good with a bowel softener. They work excellent and after 3-4 weeks of time gradually it disappears. बट ज्यादातर सर्जन ये प्रेफर नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है कि उनको ऑपरेट करना है तो पैसा ज्यादा मिलता है, सीधी बात है। But mostly they respond with medical simple conservative management. Hello. Yeah, sitz baths are good. You see, you can advise a sitz bath for them. Okay sir, thank you. Sir, thank My you. only discussion that the anal hematoma are different from external hemorrhoids. They are two different entities. साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत सुंदर आपने व्याख्यान दिया हमारे शिष्य और काफी प्रेरणादायक आपका व्याख्यान राज शिष्यों के लिए। और मैं राष्ट्रीय विद्यापीठ को आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आप जैसी विद्वानों का व्याख्यान सुनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी आपके व्याख्यान सुनने की। सर बहुत धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है सर। हेमारोइड्स में बिल्वा का कैसे उपयोग कर सकते हैं? कच्चे बेल फ्रूट का लेना चाहिए चूर्ण या फिर पका हुआ शरबत के तौर पे ले सकते हैं? बेल सर, बेल। हेलो मैडम। हाँ, देखिए जो बेल एक बहुत बेल अगर आप मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले बात करें तो बहुत सारे लोग जो लोग द्रव्य गुण से हैं या काय चिकित्सा से हैं, बेल जो है कच्चा बेल जो है ग्राही होते हैं। जो मतलब कि जो डायरियल कंडीशंस हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें म्यूकस है, म्यूकोइड डिस्चार्ज है, स्ट्रेन करता है पेशेंट बैठ करके, उनके लिए बेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जो अनराइप होते हैं। राइप बेल जो है वो मल भेदन के लिए यूज होते हैं, मतलब वो लैक्सेटिव के लिए यूज होती है। So you need to choose a condition, you see, which is good for a patient. So we prefer
बेल जो बेल कच्चा बेल जिसको हम कहते हैं कि जो ड्राई कच्चा बेल की पाउडर with some sort of a isabgol powder, those who are having a chronic colitis, having a more tenesmus sometime with a chronic amoebic colitis or chronic colitis associated with hemorrhoids, they are good for this kind of a treatment. And बेल अभी जो बेल गर्मी के दिन में जो मिलता है वो पक्का बेल है, वो bit of a laxative in most of the patients. They form a soft and but a form stool, you see, they help, you see. So you need a kind of a patient, उसकी प्रॉब्लम के साथ आप उसको इस्तेमाल करिए तो ज्यादा इफेक्टिव होती है, ऐसा मेरा समझना है। ओके सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर, हमको ये कंफ्यूजन रहती है हमेशा कि जो एनल टैग और एनल हेमरॉइड्स है उसमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि टैग देखते हैं वो भी ऐसा लगता है हेमरॉइड है। मैं सुन नहीं पाया ठीक से, डॉक्टर साहब दोबारा एक बार बोलिए। सर, हम ये पूछ रहे हैं मतलब हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन एनल टैग एंड एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। राइट, टैग सर, टैग शब्द का अर्थ ही है कि कोई चीज जैसे हम फाइल में लगाते हैं ना टैग, ये कोई चीज को वो डिनोट करता है, टैग मतलब है। नॉर्मली जो टैग्स हम देखते हैं वो जो है स्किन के टैग होते हैं। जो एनल फिशर होता है, एनल फिशर के दोनों तरफ के जो स्किन होते हैं, जब क्रॉनिक होता है तो वो इन्फ्लेम्ड होकर के थोड़ी बाहर की तरफ लटक जाता है। दे डू नॉट हैव ए venous component normally, they are simply inflamed skin and there is a central fissure bed and this protrude outside, that we call it a inflamed sentinel tag, which is very common associated with fissure. But hemorrhoids, external hemorrhoids are dilated vessels of external hemorrhoidal vessels. तो एक कॉम्प्रेसिबल है, एक जो है नॉन कॉम्प्रेसिबल है। एक फिशर बेड के साथ होता है इसलिए पेनफुल होता है। एक्सटर्नल हेमोरॉइड पेनफुल तब तक नहीं होता है जब तक वो थ्रोम्बोज नहीं होता है। ब्लीडिंग एक्सटर्नल हेमोरॉइड में बहुत कम होता है, केवल पेरिएनल स्वेलिंग होता है। इन टैग इट इज एसोसिएटेड विद पेन एंड ए फिशर बेड। सो दिस सिंपली you can differentiate very well. You can examine it also by your digit, by your finger. You can see the fissure bed and the tag. थैंक यू सर। Namaskar. Sir, can we use Chirvilwadi Kashaya? Can we use Chirvilwadi Kashaya, Chirvilwa Kashaya. सर आयुर्वेद में खासियत क्या है कि हर जगह के लिए इतने सारे औषधियां हैं, उनकी गुण, उनके रस गुण वीर्य विपाक के आधार पर आप कई तरह के योग आप बना सकते हैं और ढेर सारे जगहों पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये निर्भर करता है कि इन योगों का किस आप तरीके से आप उसको इस्तेमाल करते हैं। आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। Okay. Sir, good afternoon, sir. Professor Sahu, sir, namaskar. This is Dr. Namaste, Dattatreya. Dr. Dattatreya from नमस्ते Tirupati. नमस्ते नमस्ते Yeah. सर, कैसे है सर? सब अच्छा है? या सर मेरा एक सभी विद्यार्थियों के लिए या सभी हम सब के लिए आप थोड़ा सा एक चार सूत्र का यूज कुछ होता है क्या हेमोरॉइड्स पर, इसके ऊपर कुछ Yes. फोकस करेंगे आप? कुछ हाँ, थोड़ा फोकस मेरे ख्याल से ये जो स्पेशली डॉक्टर श्याम सुंदर जी जयपुर में थे तो और भी बहुत सारे लोगों ने चार सूत्र के ऊपर बहुत सारे काम किया है और उनकी जो ऑब्जर्वेशन है ये बेहद अच्छा है। और हाँ, सर। हम लोगों ने भी कई बार जो है सिंपल थ्रेड के बदले में क्षार के जो क्षार सूत्र से हेमोरॉइडल मास को लाइगेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, करते भी हैं, हाँ। अभी भी करते हैं। तो हाँ। उसमें बेनिफिट इतना होता है कि जो फाइब्रोसिस होती है वो शायद थोड़ी सी ज्यादा होता है। तो ये स्टडी की विषय है और जो लोगों ने इसके ऊपर काम करते हैं मेरे ख्याल से इस चीज को एक बार प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना और एक सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहिए मेरे ख्याल से।
लेकिन अब प्रतिशाली क्षार के ऊपर ढेर सारे काम है और बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस है, खासतौर से डॉक्टर परवेज, मैंने भी कई सारे वर्क किया है उसका। मैं कभी समय मिले तो बात कर सकते हैं हम लोगों ने, जो ह्यूमन टिश्यू के ऊपर, लाइव टिश्यू के ऊपर उसकी उसका आउटकम है। तो ये एक अलग एस्पेक्ट्स है, क्योंकि हम आरबी के जो बिगिनर्स हैं उनके साथ बात कर रहे थे, इसलिए इन चीजों को मैंने इसमें समावेश नहीं किया। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके ओके, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ये गुरुजी ओपन हेमरेक्टोमी में कई बार 15-20 दिन के बाद वुंड हील नहीं होता है, तो उसका मैनेजमेंट कुछ बताएं। ओपन हेमरेक्टोमी के ये सब प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर आप बहुत केयरफुली अगर ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली लार्ज दोनों तरफ से अगर मल्टीपल स्टम्प बनाते हैं तो बड़े बड़े घाव बन जाते हैं। 15-20 दिन में कई बार घाव नहीं भरता है। तो मैं जिन पेशेंटों को मेरे पास आता है पोस्ट हेमोरेक्टोमी वुंड लेकर के, ब्लीडिंग लेकर के आता है, उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि उनके टॉयलेट हैबिट को करेक्ट करना। मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी टॉयलेट हैबिट देर तक होता है, देर तक बैठे बैठे स्ट्रेन करता है। दूसरा क्या है कि जो लोकल वुंड जो है वो क्लीन करने के, उसको रगड़ने का जरूरत नहीं है। सिंपल ल्यूकवार्म शीट्स बात, चाहे पंचवल्कल से हो चाहे त्रिफला कषाय से हो, उनकी शीट्स बात करें। और हम ज्यादातर समय मैं प्रेफर करता हूँ अम्ल की रसायन के सेवन से। और दूसरा जो है ये बाउल करेक्शन करने के, जो रेगुलर स्टूल हार्ड ना हो, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली कुछ समय के बाद, करीब महीने एक आध महीने के अंदर धीरे धीरे वुंड हील हो जाता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि पेशेंट की स्ट्रेनिंग से बचाना, स्ट्रेन करे ना करे। ओके गुरुजी, धन्यवाद। नमस्कार। On behalf of organizing committee, I would like to thank Professor Dr. Manoranjan Sahu sir for delivering such insightful lecture. I would like to extend my sincere gratitude to our mentor, Vaidya Devendra Trigunaji, President, GBRAB, for his continuous support, guidance, and blessings. I thank our director, Dr. Vandana Siroha ma'am, who is the guiding force for all the events at RAV. I would also like to thank Vaidya Rajesh Koteja ji, Secretary, Ministry of Ayush, for his participation and encouragement in all our endeavors. Most importantly, I would like to express heartfelt thanks to all the gurus, shishyas, and other scholars who, with their presence and active participation, make this webinar a successful one. Last but not the least, I thank each member of RAV organizing team who work behind the stage to make this event successful. Thank you so much, sir. Namaste, madam ji. Thank you. Namaste, Thank you all. sir. Thanks. Namaste, madam. Namaste. Thank you all. And now I'm closing. Okay. Thank you.